Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Now today I am going to talk about the topic that is water consumption pattern in rural and urban settlement. That means the specified topic related to B.Ed semester 4 in optional paper number 13, issues of कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ B.Ed सेमेस्टर 4 के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर नंबर 13 जो कि विषय है इशूज ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन। उसके अंतर्गत यूनिट 2 का टॉपिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जल उपभोग की व्यवस्था या स्थिति या तरीका कि एक्चुअल में पानी का प्रयोग कैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, क्या उसका आधार है। जब कभी भी अगर पानी की बात करें तो निश्चित ही ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि जल ही जीवन है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। अगर सभ्यता की बात करें, मनुष्य के जीवन यानी ओरिजिन की बात करें तो वो नदी के किनारे ही स्टार्ट होते हैं, यानी मनुष्य का जीवन का आधार जल है और जल के बिना मनुष्य जो है वह जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर सकता है। तो जब अगर जल इतना महत्वपूर्ण है तो निश्चित ही इसके तरीके कुछ वर्तमान समय के अनुसार अलग हैं। अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ यानी पानी के उपयोग का जो तरीका है, खपत का जो आधार है, वह कुछ यूजेज यानी उपयोग के अनुसार है, जिसमें कि कुछ फायदे भी हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में जल का उपभोग जो है अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अगर बात करें ग्रामीण परिवेश के आधार पर तो ग्रामीण परिवेश में जहाँ इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। शहरी क्षेत्र में इसके फ़ायदे कम, नुकसान है। वर्तमान समय में लोगों की जागरूकता, व्यक्तियों की जागरूकता के चलते शहरी क्षेत्र में भी वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण को लेकर बहुत सारे जो है नीति, नियम, आजकल मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पर भी नीति बन रही है। धीरे धीरे ये व्यवस्थाएँ कुछ लोगों को जागरूक होने से सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो अब मैं आपको इस दोनों क्षेत्रों में सेटलमेंट यानी कि भोग की जो स्थिति है, कैसे खपत होती है, इन दोनों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, first describe in English, that is water consumption pattern in rural and urban settlement. Water consumption is defined as the fresh water taken from ground or surface water sources either permanently or temporarily and convey to the place of use. Water consumption is the portion of water used that is not returned to the original water source after being withdrawn. Average daily water use ranges from a little as 100 liters per person in some coastal areas to the more than 800 liters per person in the dry inland areas. The current average daily water consumption is 340 liters per person or 900 liters per household. Now, important of water consumption. Drinking water helps to maintain the balance of body fluids. Body is composed of about 60% water. The functions of these bodily fluid include digestion, absorption, circulation, creation of saliva, transportation of nutrients, and maintenance of body temperature. Water delivers important nutrients to all of our cells, especially muscle cells, postponing muscle fatigue. Water helps weight loss, increases energy, and relieves fatigue. Water helps you feel full longer without adding any additional calories. Brain is mostly water. Drinking it helps you think, focus, and concentrate better and be more alert. Now, water consumption pattern in rural and urban settlement.
Water is an abundant and renewable natural resources that covers almost two-thirds of the earth, but a very small proportion of this is effectively available for human use. The demand for water has always been rising due to development in both rural and urban areas. Water consumption pattern in rural settlement. Number one, traditionally rural settlement were associated with agriculture. In modern times, other types of rural communities have been developed. The settlement where the occupation of majority of people relate to the local natural resources are called rural settlement. For example, settlement of fisheries along a sea coast, settlement of tribal people in a forest area, settlement of farmers along the bank of rivers. Vegetable gardening is crucial to rural households, especially in developing countries, and affect the annual income of a small farm families directly. Vegetable gardening consists of more than 58% of outdoor water consumption. Now, water consumption pattern in urban settlement. According to the guidelines of drinking water quality, who define residential water as being water used for all usual domestic purposes, including consumption, bathing, and food preparation. The water utilization and consumption pattern is different in urban and rural areas. The water utilization in urban areas is more than the rural areas. Water, the need of life, is likely to pose the greatest challenge on account of an increased demand with the population rise and economic development, and shrinking supplies due to the over exploitation and pollution. A majority of households in major cities in India depend on the municipal water supply for their daily needs. As most of the households in urban areas are depending on tap water, it is a major challenge for the government to provide safe water to all households for their household consumption. Residential water used for household purposes such as drinking, food preparation, bathing, washing clothes, flushing toilets, and watering lawns and gardens. Urban settlements are mostly need for improved and self drinking water, appropriate forms of sanitation, and access to water for other domestic purposes. The condition of clean water, sanitation, and removal of storm water to all the residents of the large urban center of developing countries will be one of the major challenges. Only about 18% of the total household in the metro cities get 24 hours of municipal water supply, so the household in majority of the cities depend on groundwater and other sources of water like private vendors who supply water through tankers and drum result in depletion of groundwater. The water used in household is highly linked with the income of different groups. Most water consumption is observed in high income group people and middle income group people in India. Only high income group people and middle income group people are responsible for large water consumption. Now, अब मैं इस सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूँ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र बस्ती में जल पानी के उपभोग का तरीका। परिभाषा: जल की उपभोग को जमीन या सतह के जल स्रोतों से लिया गया मीठे पानी के रूप में परिभाषित किया जाता है, या तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, और उपयोग के स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। पानी की खपत यानी पानी के उपभोग का हिस्सा है जिसे वापस लेने के बाद मूल जल स्रोत में वापस नहीं किया जाता है। शुष्क तटीय क्षेत्रों में औसत दैनिक जल उपयोग कुछ तटीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 100 लीटर से लेकर 800 लीटर से अधिक तक होता है। वर्तमान औसत दैनिक पानी की खपत प्रति व्यक्ति 340 लीटर या प्रति घर 900 लीटर है। पानी के उपभोग का महत्व: पीने का पानी शरीर के तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर लगभग 60% पानी से बना है। शारीरिक जरूरतों के कार्यों में पाचन, अवशोषण, परिसंचरण, लार का निर्माण, पोषक तत्वों का परिवहन और शरीर के तापमान का रखरखाव शामिल है। पानी हमारे सभी कोशिकाओं, विशेष रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को वितरित करता है, मांसपेशियों के थकान को रोकता है। पानी वजन घटाने में मदद, ऊर्जा बढ़ाने और थकान से राहत देता है। बिना किसी अतिरिक्त कैलोरी को जोड़े पानी आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। मस्तिष्क में ज़्यादातर पानी है, इसलिए पानी पीने से सोचने, ध्यान केंद्रित करने, बेहतर ध्यान केंद्रित करने और अधिक सतर्क रहने में मदद मिलती है। ग्रामीण और शहरी बस्ती में जल या पानी के उपभोग का तरीका। पानी एक प्रचुर और
करणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है, लेकिन इसका बहुत कम अनुपात मानव उपयोग के लिए प्रभावी रूप से उपलब्ध है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास के कारण पानी का मांग हमेशा बढ़ती रही है। ग्रामीण बस्तियों में जल या पानी को उपभोग का तरीका। परंपरागत रूप से ग्रामीण निपटान कृषि से जुड़े होते हैं। आधुनिक समय में अन्य प्रकार के ग्रामीण समुदाय का विकास हुआ। वह बस्ती जहां बहुसंख्यक लोगों का कब्जा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री तट के किनारे मत्स्य पालन का निपटान यानी मत्स्य पालन किया जाना। वन क्षेत्र में तिहरे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वह बस्ती जहाँ बहुसंख्यक लोगों स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हैं को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री तट के किनारे मत्स्य पालन के लिए, वन क्षेत्र के किनारे किसान वन्य का कार्य करने के लिए, नदियों के किनारे किसान बाकी जो नदी घाटी सभ्यता से संबंधित जो कार्य हैं या नदियों के किनारे विविध प्रकार के कार्य जो अपना करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकासशील देशों में सब्जी की बागवानी महत्वपूर्ण है और छोटे किसान परिवारों की वार्षिक आय को सीधे प्रभावित करती है। वनस्पति बागवानी में बाहरी पानी की खपत का 58% से अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों बस्ती में पानी का उपभोग का तरीका। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए WHO आवासीय पानी को सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पानी के रूप में परिभाषित करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का उपयोग और खपत का तरीका अलग है। शहरी क्षेत्रों में पानी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में लोग पानी के लिए पूरी तरह से नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भर हैं। जल जीवन की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ती मांग के कारण सबसे बड़ी चुनौती की संभावना है। दैनिक जरूरतों की पानी के लिए भारत में प्रमुख शहरों में अधिकांश घर नगर निगम की आपूर्ति पर निर्भर करती है। नगर पालिका की जल प्रणाली से जुड़े ग्रामीण निवासियों की तुलना में प्रति व्यक्ति पानी का अधिक उपयोग होता है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच की प्राथमिकता। नंबर 1, आवासीय पानी का उपयोग पीने, भोजन बनाने, स्नान करने जैसे घरेलू कार्यों के लिए, कपड़े धोना, शौचालय के लिए और बागानों को पानी देना। खपत, स्नान और भोजन तैयार करने सहित घरेलू उद्देश्य। सभी बड़े निवासियों के लिए साफ पानी स्वच्छता प्रमुख चुनौतियों में से एक है। पानी के उपयोग की विधि शहरों के भीतर सामाजिक आर्थिक वर्गों में भिन्न होती है। केवल मेट्रो शहरों में कुल घरों के 18% घरों में 24 घंटे नगर निगम की पानी की आपूर्ति होती है। इसलिए अधिकांश शहरों में घर और भूजल यानी जो स्टोर होते हैं और पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि निजी विक्रेता को जो टैंकरों ड्रमों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करते हैं। भूजल का मतलब दैट मीन्स जो स्टोर, खासकर अंदर में जो पानी जमीन के अंदर रहते हैं जिसका कोई बोरिंग वगैरह के द्वारा उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा पानी भारत में उच्च आय वर्ग के लोग और मध्यम आय वर्ग के लोगों में खपत देखी जाती है। इसलिए केवल उच्च आय समूह के लोग और मध्य आय समूह के लोग अत्यधिक पानी की खपत के लिए जिम्मेवार हैं। इस प्रकार से मैंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को स्पष्ट किया। Now, on the basis of above indication, it indicates that urban and rural, in both types of area, utility and settlement of the water is most important. Generally, हम ये चीज़ देखते हैं इस ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के उपयोग के साथ साथ कैसे खपत करना है जिससे कि उसका कुछ उपयोग वो अपने जीवन के संसाधनों के साथ साथ जीवन यापन करने के लिए भी करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें शहरी क्षेत्र में आती हैं तो पानी का उपयोग तो अत्यधिक मात्रा में होता है, लेकिन वो संसाधनों के रूप में नहीं यानी जीवन यापन के रूप में नहीं। वहाँ जीवन यापन कुछ वेंडर्स या कुछ जो पानी पहुँचाने वाले लोग होते हैं वो उस प्रकार से करते हैं, लेकिन वह परमानेंट यानी हमेशा का सॉल्यूशन समाधान नहीं है। आवश्यकता इस चीज़ की है कि जल संरक्षण कैसे किया जाए और कैसे उसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाए जिससे कि कुछ शहरी क्षेत्रों में भी जीवन यापन का एक आधार बने, एक साधन बने, तभी जल की समस्या का समाधान हो सकता है और वाटर को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, संरक्षण किया जाए, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें और नोट्स तैयार करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसे YouTube में अपलोड किया जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे हमारे चैनल को तो आपको जैसे ही अपलोड होगा तुरंत उपलब्ध होगा। अगर नहीं किए हैं तो आप अपलोड करें।
अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।